Hello students, welcome to the online session of Resonance. I'm Saloni Sadda, Faculty of English. Today I'm going to teach you a new topic, adverb. So what is an adverb? The definition is already written on the board. Please have a look. Adverb is a word or set of words. An adverb is a word or set of words. एक word भी हो सकता है और एक से ज़्यादा words भी हो सकते हैं, which modifies a verb. I have written the meaning of modifies. What does modify mean? It means qualifies. So it modifies three things. Firstly, a verb, then an adjective or another adverb. How will it modify? Let's see some examples. First example, he walks slowly. So here, he walks. Walks is what? He is a pronoun. Walks is a verb. It is an action. And thereafter, we have written slowly. Here, slowly is an adverb. Why? Because it is qualifying a verb. It is telling the manner how he walks. Okay, so here an adverb is modifying a verb. Next example, he walks very fast. This example is similar to the first one, but I have added one word very over here. Let's have a look at the part of speech. He is a pronoun. Then walks. Walks is a verb. It is an action. Then I have written very over here. Very. बहुत तेज चलता है वो. Fast is what? Fast is an adverb. कैसे चलता है? It is telling us the manner. Fast चलता है. But I have added one more word, very. बहुत fast चलता है. यहाँ हम बोल रहे थे वो धीरे चलता है. कैसे चलता है? धीरे. So we were getting an answer, how. Okay, we got the answer of how he walks. Here also we are getting the answer of how he walks, but we also have the frequency over here. Okay, see, we also have the degree over here. कितना fast चलता है? एक adverb एक दूसरे adverb को qualify कर रहे हैं यहाँ पर. One adverb is modifying another adverb. So this definition, it is getting concluded over here. Then the mango is almost ripe. Here the mango is a noun, is helping verb, almost ripe. Ripe means पका हुआ है वो. आम लगभग पक चुका है. Almost का मतलब क्या है? लगभग. वो पक चुका. तो ripe is an adjective. ये एक describing word है. कैसा आम है? कैसा मैंगो है? पका हुआ है. It is ripe. So this is adjective. And what is modifying an adjective? This word, almost. So this word almost is an adverb over here. आम कितना पक चुका? How much is it ripe? So this answer we are deriving from adverb. So I hope the definition is clear. So an adverb is a set of words or a word that qualifies a verb, adjective or another adverb. So now we'll study the types of adverbs. The first type is adverb of manner. Let's have a look. Adverb of manner. Manner, as the name suggests, काम किस तरह से हो रहा है, we'll come to know about this. So it represents the manner of doing work. What does it represent? It represents the manner. So this is very important. It mostly comes in the last of the sentence. It mostly comes in the last. Sentence जब आप पढ़ेंगे आपको ज़्यादातर ये adverb last में लिखा हुआ मिलेगा. कौन सा adverb? Adverb of manner. Generally it ends with ly. Generally हम इसे ly से end करते हैं, but it is not necessary that every adverb of manner will end with ly. Just have a look at the examples. She speaks English well. So how does she speak? She speaks well. तो यहाँ पर well जो है, this is also an adverb of manner. हालांकि यहाँ पर ये ly से end नहीं हो रहा, but look at the next example. Ria writes beautifully. This is ending with ly. तो mostly आप देखेंगे slowly, beautifully, okay, enormously. Such words end with ly. Then they are all adverb of manner. किस तरह से काम हुआ जो हमें बताते हैं वो होते हैं adverb of manner. We ask question how. I've written this word with red ink. See, how. काम कैसे हुआ? How the action took place. We get this answer from adverb of manner. It represents manner. Look at the examples. Ria writes beautifully. How does she write? She writes beautifully. कैसा लिखती है? Beautifully से हमें पता चल रहा है. Similarly, she speaks English well. कैसी इंग्लिश बोलती है? अच्छी इंग्लिश बोलती है. So well is adverb of manner. Now we look at the further types of adverbs. So the next adverb is adverb of time. Let's have a look. When an action is performed or takes place, what does it answer? It answers when.
एक्शन कब हो रहा है ये हमें बताएगा एडवर्ब ऑफ टाइम. तो जब भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे हमें कुछ टाइम का क्लू मिलेगा. लेट्स हैव अ लुक. हिज एंड केम सून. उसका अंत जल्दी आया. कब आया? जल्दी आया. सो हियर व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? सून इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. ये हमें क्या बता रहा है? किसका आंसर दे रहा है? ये हमें व्हेन का आंसर दे रहा है. कब आया उसका अंत? जल्द ही आया. देन आई मेट हिम yesterday. कब मिली मैं? when did I meet him? so I met him yesterday. yesterday हमें बता रहा है कि कब एक्शन हुआ. when an action is performed, okay, or was performed. it also tells us for how long some action took place. कोई काम हुआ तो कब हुआ, पहली बात तो ये पता चलेगी. दूसरी बात जो पता चलेगी वो ये है कि for how long, कितनी देर तक. ड्यूरेशन हमें पता चलेगा. ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक कोई काम हुआ. okay, so we'll get such answers from adverb of time. So the next adverb is adverb of place. We also call it adverb of position. Okay, now what is it? We get the answer of where. Where the action takes place. कोई काम कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ. So we get the answer from adverb of place. So let's have a look. He met my friend there. वो मेरे दोस्त से वहाँ मिला था. कहाँ मिला था? वहाँ मिला था. There. So this is adverb of place, or you can call it adverb of position. Next sentence, I searched him everywhere. Everywhere. मैंने उसको हर जगह ढूंढा. कहाँ कहाँ ढूंढा? Where did I search for him? I searched for him everywhere. Okay. So everywhere is the adverb of place over here. So next adverb is adverb of frequency. And I have written some examples over here like daily, once, nowadays, today, lately. ये सब क्या है? All these are adverb of time. Okay, but if we talk about upstairs, downstairs, out, nowhere, somewhere, ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें जगह बता रहे हैं. So these come under the category of adverbs of place or position. So these are the examples of adverbs of time and these are the examples of adverbs of place. So the next type of adverb is adverb of frequency. Let's have a look. It gives us the answer to the question how often or how many times an action takes place. So कोई काम कितनी बार हुआ, कितनी जल्दी जल्दी वो हुआ या कितनी देरी में हुआ वो, ये हमें बताएगा adverb of frequency. Let's have a look at some examples. I seldom go there. Seldom means कभी कभी. मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ. So सेल्डम क्या बता रहा है? हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है. कोई काम कितनी बार हुआ. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स हमें बता रहा है. द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड. देन शी ऑफन कम्स हियर. वो यहाँ अक्सर आया करती है. ठीक है, मतलब डेफिनेटली आती रहती है वो यहाँ पर. तो फ्रीक्वेंसी पता चल रही है कि वो कितनी बार आती है, कितने देरी में आती है. मीन्स एक फ्रीक्वेंसी पता चली हमें. तो बार बार आती रहती है. तो ऑफन and seldom, these are adverbs of frequency. Now I have written a note over here. How will we classify the adverbs of frequency? इनमें भी अलग क्लासिफिकेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल always. always क्या बताता है? when an action is performed always. ठीक है, जब हम कोई काम हमेशा करते हैं. ठीक है, तो वो एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि वो 100% हो रहा है, बार बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है. ठीक है, सो 100% it denotes frequency. usually. usually means कोई काम होता रहता है, हमेशा होता रहता है वो. मतलब ऑलवेज नहीं, बट ऑलवेज से थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी होती है यूजुअली की. यूजुअली मीन्स वो बहुत होता है वो काम. ठीक है, देन लाइक आई यूजुअली टॉक इन इंग्लिश. ठीक है, कोई काम मैं अक्सर कर रही हूँ, हमेशा कर रही हूँ एक तरह से. अब ऑलवेज तो नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इंग्लिश बोल रही हूँ, थोड़ा हिंदी भी बोल रही हूँ, बट येस यूजुअली आई स्पीक इन इंग्लिश. सो 90% it denotes. Then normally and generally. Normally and generally has a frequency of 80% students. कोई काम अच्छी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे जनरली वी मीट एट दिस प्लेस. मतलब हम इस जगह पर हमेशा मिलते रहते हैं, मतलब अक्सर मिलते रहते हैं. तो 80% फ्रीक्वेंसी बताता है. देन कम्स ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली. ऑफन भी यही बताता है कि कोई काम बार बार हो रहा है. ठीक है, कम कम गैप्स पे हो रहा है, ज़्यादा टाइम ब्रेक नहीं हो रहा उसके बीच में. सो 70% वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वर्क. देन व्हेन वी टॉक अबाउट समटाइम्स.
समटाइम्स मतलब कोई काम की फ्रीक्वेंसी मतलब उसके होने या ना होने का 50% फ्रीक्वेंसी होता है। वो काम हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब वो होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब 50% फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है। कभी कभी हम कर लेते हैं, कभी कभी हम नहीं भी करते हैं। देन 30%, नाउ यू विल सी दैट आई हैव रिटन ऑल दीज एडवर्ब्स विद डिफरेंट कलर्स, ओके। यहाँ मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, ग्रीन इंक है, यहाँ पर मैंने ब्लू इंक यूज़ करी है, यहाँ मैंने रेड इंक यूज़ करी है। सो यू विल सी जितने भी ग्रीन इंक से जो मैंने लिखे हैं फ्रीक्वेंसीज, वो सब पॉजिटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, मतलब वो काम अक्सर होते रहते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम गैप नहीं आता। लेकिन यहाँ मैंने 50% को बताया है, समटाइम्स को बताया मैंने ब्लू इंक से, इट मीन्स ये काम होता भी है और नहीं भी होता है। एंड जो मैंने रेड इंक से लिखे हैं, ठीक है, दीज आर एक्चुअली द नेगेटिव एडवर्ब्स, दीज आर द नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमें बताते हैं कि कोई काम बहुत ही कम हुआ करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 30% हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है ओकेजनली की, जब हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ओकेजनली वेयर अ साड़ी, ठीक है, अब मैं साड़ी पहनती हूँ, ठीक है, बट ओकेजनली पहनती हूँ। आई डोंट वेयर इट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं पहन रही। आई डोंट वेयर इट यूजली, ज़्यादातर मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। देन फ्रीक्वेंटली भी नहीं पहन रही हूँ, फ्रीक्वेंटली मीन्स जल्दी जल्दी भी नहीं पहन रही हूँ मैं साड़ी को, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम गैप में। समटाइम्स, ओके, समटाइम्स कह सकते हैं, ठीक है, 50% कभी पहन ली कभी नहीं पहनी। बट ओकेजनली जब कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है, व्हेन देर इज एनी ओकेजन देन आई वेयर अ साड़ी, सो येस इट डिनोट्स 30% फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। अब वो काम आप देखिए, ये काम बार बार नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स डे आया, वील वेयर अ साड़ी, ओके, या कोई फेयरवेल फंक्शन आया, या कोई आपका गूंज फंक्शन आया, देन आई विल वेयर अ साड़ी। सो 30% ओकेजन वाइज मैं इसको क्लासीफाई करूंगी। देन सेल्डम एंड रेयरली, सेल्डम एंड रेयरली डिनोट्स कि कोई काम बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो बार बार नहीं हो रहा है, कभी कभी हो जाए तो ठीक है। सो सेल्डम एंड रेयरली मीन्स कभी कभी होना। 10% frequency it denotes. जैसे आई हैव रिटन आई सेल्डम गो टू टेम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई सेल्डम गो टू टेम्पल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं मंदिर कभी कभी चली जाती हूँ, ठीक है, हमेशा नहीं जा रही, फ्रीक्वेंटली नहीं जा रही, समटाइम्स भी नहीं बोला, बहुत कम जा पा रही हूँ, तो सेल्डम, ओके। देन हार्डली, हार्डली मीन्स कोई काम मुश्किल से हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही हार्डली स्पीक्स इन इंग्लिश, कोई स्टूडेंट है उसको नहीं आती इंग्लिश, तो हम क्या बोलते हैं? ही हार्डली स्पीक्स अ वर्ड इन इंग्लिश, मुश्किल से ये कोई एक शब्द भी इंग्लिश का बोलता होगा। तो 5% फ्रीक्वेंसी इट डिनोट्स, मतलब क्या वो बार बार इंग्लिश बोल रहा है? नहीं, बहुत ही कम, 5% ओनली, ठीक है। देन 0% नेवर, नेवर का मतलब कोई काम कभी भी नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली इट इज अंडरस्टूड 0% फ्रीक्वेंसी। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, इन पे बेस्ड एक रूल आएगा आगे, we call it rule of inversion. So these adverbs you have to remember, okay, because there is a rule based on these adverbs. So we'll continue further with the next category. So the next adverb is adverb of degree. We also call them intensifiers. Why do we call them intensifiers? Because they tell us the intensity of an action. It tells us to what extent an action takes place. कोई काम हुआ तो वो किस हद तक हुआ, एक्सटेंट बताता है, इंटेंसिटी बताता है उस काम की। फॉर एग्जाम्पल द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक, दूध बहुत गर्म है पीने के हिसाब से। तो कितना गर्म है ये किससे पता चल रहा है? वी आर गेटिंग द आंसर फ्रॉम the word to. So this word to is an adverb of degree over here. See, too hot to drink. To is adverb of degree. किस हद तक गर्म है milk? To बता रहा है. Then hot is an adjective, and thereafter to drink. To drink is an infinitive because whenever we use to with first form of verb, it is an infinitive. Then let's have a look at some more examples. Very much, to, and enough. These also tell us to what extent or how much. Okay, we get the answers to these questions, how much and to what extent an action takes place, from the words like very, much, to, and enough. Now have a look at the example. He runs very fast. How he runs? We are getting the answer of how he runs from the word fast. So fast is an adverb of manner over here. Understand the difference. In the same sentence we have used more than one adverb. Okay,
So here he is a pronoun. He is a pronoun over here. He runs. Runs is a verb. And very fast. Fast is an adverb. It is telling us the manner in which the action takes place. But very, here one adverb is qualifying another adverb. Okay. So here very is telling us about the degree. किस intensity से वो भाग रहा है. So adverb of degree is very over here. Relative adverbs. They refer back to the antecedent. Now, what is antecedent? I told you earlier when I taught you pronoun, the noun to which they relate. Okay, so let's have a look at the example. I don't know where she works. Okay, here, where is a relative adverb. Let us understand how is it a relative adverb. We'll also get a clue that it is acting like a joining word. So it performs the role of a conjunction as well. It joins clauses. Okay, then example when, where, why, whenever. These are certain examples of relative adverb. You'll see they will connect or they will provide the relation between the sentences. Now, how is it telling us about the relation between the sentences? I don't know. This is one part of a sentence. Now, we have written where. This is acting like a conjunction and joining it to the rest of the part of the sentence. So, this is relating the first part to the next part of the sentence. What do I don't know? So, how am I getting related to the question? By adding relative adverb over here. Where. I don't know where she works. मुझे नहीं पता. ये एक हिस्सा हो गया हमारे सेंटेंस का. अब क्या नहीं पता कि वो कहाँ काम करती है. ठीक है. अब इन दोनों को ज्वाइन करना है तो एक रिलेटिव एडवर्ब को की हेल्प से हम इसे ज्वाइन करेंगे. सो वेयर विल कम ओवर हियर. नेक्स्ट सेंटेंस, दिस वॉज द डे. ये वो दिन है. ये हो गया हमारा एक पार्ट ऑफ सेंटेंस. वी फर्स्ट मेट. ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस. इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? रिलेटिव एडवर्ब इज कनेक्टिंग देम. दिस वॉज द डे when we first met. So here when is the joining word and it is a relative adverb as well. Now you'll see the difference, that there is a difference between relative pronoun and a relative adverb. Generally students, they get confused between these two terms. What is a relative adverb and what is a relative pronoun? See, please pay attention on the words written over here. I've written it with green ink. When, where, why, whenever. When you will open relative pronouns, you will see different words. There you will see which, who, that, whom. So the difference is in the words. So don't get confused between relative pronouns and relative adverbs. Generally students think that both of them refer to the antecedent. Yes, they get back to their antecedent. Yes, antecedent plays its role, but there is a word of, the difference is in the words. I have written when, where, why, whenever, but in relative pronoun we use which, who, and that. Which, who, that, or you can say whom or whomever. So there is a difference between the words you can see. So please don't get confused. So the next adverb is interrogative adverb. Interrogative, as the name suggests, which is used to ask questions. We have studied interrogative pronouns. Now we are studying interrogative adverbs. Similarly, when we are going to study adjectives, there we'll study interrogative adjectives. So don't get confused. There is a difference, huge difference between all of them. Let's have a look. Interrogative adverbs ask questions about time, place, or you can say how and where an action is performed. ये इस तरह के सवाल हमसे पूछेगा, ठीक है, या हमें इनका जवाब मिलेगा, ठीक है. वैसे तो ये पूछता है सवाल, ये जवाब नहीं देता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू कम. यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं. यू विल सी whenever any question mark is used in a sentence, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब इनका यूज होएगा. लाइक हाउ, ठीक है, हाउ डिड यू कम, तुम कैसे आए हो. सो दिस इज एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, क्या तरीका अपनाया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैनर पूछ रहे हैं. Then when did you come? Here when is an interrogative adverb of time. आप कब आए, ठीक है, ये एक सवाल पूछा गया है. So this is interrogative adverb of time. Then where are you going? Again we are asking a question regarding place. So this is interrogative adverb of place. Where? How often do you run? Now this is interrogative adverb of frequency.
आप कितना जल्दी जल्दी रन करते हैं या आप कितने टाइम में रनिंग करते हैं. सो हाउ ऑफन यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरह पूछा गया है, यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिल रहा है, एक क्वेश्चन बताया गया है एंड इट इज टेलिंग अस अबाउट इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ frequency. So I hope this is clear to all of you. We'll further move on to the next type. Adverb of affirmation and negation. Affirmation means assertion. कोई चीज़ को हम हाँ बोलते हैं, that is affirmation. And negation means denial. Denial क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के लिए ना बोलते हैं. ठीक है? So assertion means yes and denial means no. Okay. First of all, let's have a look over here. Adverb of affirmation and negation express one's response or reaction to the questions. किसी ने किसी क्वेश्चन का कैसे रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया या नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, उसने सवाल का रिप्लाई हाँ में दिया या ना में दिया. ठीक है, ये पता चलेगा हमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन से एंड नेगेशन से. इफ वी यूज yes in the response, it shows affirmation. Okay, we use yes for affirmative sentences and no for negative sentences. So this is very important. Let's have a look over here. If I ask a question, do you like sweets? क्या आपको मिठाइयाँ पसंद है? अगर आपको पसंद होंगी so you will say yes, I do. लेकिन अगर आपको नहीं पसंद होंगी तो आप डिनाई करेंगे, आप उसको नेगेट करेंगे, आप कहेंगे no, I don't like sweets. Okay, so if you say yes I do means you are giving a positive response, you are affirming. Okay, so yes is used for affirmative sentences and no is used for negative sentences. Similarly, if I ask you another question, is he not well? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? So अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी you will say yes, he is not well. लेकिन अगर उसकी तबीयत ठीक होगी तो आप कहेंगे no, he isn't. Okay, so I hope the difference is clear. Some more examples I'll give you. Not, certainly, surely, definitely, ये कुछ ऐसे examples हैं, ये कुछ ऐसे words हैं जो हमें बताएंगे certainty किसी चीज़ की, surety या फिर denial बताएंगे. अगर मैं बोलूँ I do not know him, मैं उसे नहीं जानती, यहाँ पर मैंने एक do not को यूज़ किया है which shows एडवर्ब ऑफ नेगेशन. मैं डिनाई कर रही हूँ कि मैं नहीं जानती, डिनाई कर दिया मैंने, मतलब मना कर दिया. इफ आई से ही इज श्योरली राइट, नाउ हियर श्योरली इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि वो सही है. ठीक है, मैं अफर्म कर रही हूँ. सिमिलरली आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. इफ आई से आई विल सर्टनली कम टू योर पार्टी, अब यहाँ पर मैंने अफर्म कर दिया, यहाँ पर मैंने अग्री कर लिया कि हाँ मैं बिल्कुल ज़रूर आऊँगी तुम्हारी पार्टी में. तो सर्टनली क्या हुआ? सर्टनली एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हुआ. डेफिनेटली की बात करूँ, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम. ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में. तो नाउ आई हैव assured you, I have affirmed you, so this is again adverb of affirmation. So I hope affirmation and negation are clear to you. So now we start with the rules of adverb. We have already studied all the types of adverbs, so it will be easier for you to understand the rules now. So the first rule is based on the word enough. Now enough can be used as an adjective also, and it can be used as an adverb also. It can be used in both the ways. Now how will we identify how this word enough has been used in the sentence? Whether it is adverb or is it an adjective? Let's see how we'll understand. Whenever enough is used as an adjective in a sentence, then you'll see this structure in the sentence. जब भी enough एक adjective की तरह यूज़ होगा, आप देखेंगे सेंटेंस में पहले enough आएगा और उसके बाद में नाउन लिखा हुआ होगा. अगर ये केस आपको दिखता है सेंटेंस में कि पहले enough लिखा है बाद में नाउन लिखा है, then it is understood कि enough यहाँ पर एक adjective की तरह यूज़ हुआ है. It is not used as an adverb. Example, he has enough money to buy a car. Generally students make mistake over here. They think that enough is an adverb. No. Here you have to look at this particular part. यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत important है. यहाँ पर हमेशा mistake करते हैं students. He has enough money to buy a car. यहाँ पर enough एक adjective है. क्यों? क्योंकि it is immediately followed by a noun. Money क्या है? Money एक noun है. So if enough is followed by a noun,
then it is an adjective. Okay, we won't say it is an adverb over here. Let's have a look how enough will be used as an adverb in a sentence. Now, whenever it is used as an adverb in a sentence, we will see this particular structure in the sentence. For example, he is rich enough to buy a car. Okay, he is rich enough to buy a car. यहाँ पर आप देखिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर इनफ के बाद में कोई नाउन आ रहा है जैसे ऊपर आया था. इनफ के बाद नाउन नहीं. यहाँ पर इनफ के बाद नाउन नहीं आ रहा है, यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है. यहाँ तो इन्फिनेटिव यूज हुआ है, 2+V1 वर्ब यूज हुई है. तो यहाँ इनफ के बाद नाउन नहीं है तो ये श्योर है कि भाई ये एडजेक्टिव नहीं है. सिमिलरली इनफ के पहले क्या आना चाहिए? इनफ के पहले एक एडजेक्टिव आना चाहिए, दैट टू इन पॉजिटिव फॉर्म. दिस शुड बी इन पॉजिटिव फॉर्म. Positive form. This is very, very, very important. Positive form of adjective. This is very important part. ये आना चाहिए. उसके बाद में enough. Okay? तो आप देखिए he is rich enough. Rich क्या है? एक adjective है. किस form में है? Positive form में है. You know what is positive form of adjective? You have studied different degrees. Like positive degree of adjective, then comparative degree of adjective, then superlative degree of adjective. For example, rich, richer, richest. ठीक है, तो rich क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री हो गया adjective का. इसका comparative डिग्री richer और richest superlative डिग्री the highest डिग्री. ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही आना चाहिए. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दूँ he is richer enough. Richer enough. Richer लिख दूं या richest लिख दूं? He is richest enough to buy a car. So again, this is wrong. ये नहीं होगा. इनफ के पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो अपनी पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आएगा. दिस इज द रूल, फर्स्ट रूल ऑफ एडवर्ब. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार. हियर इनफ is preceded by an adjective, so it is an adverb over here. Okay, now I've written one more thing over here. It is a note. Basically this is the rule. Adjective in positive form should be used before adverb enough. Okay, she is lucky enough to get the job. This is a correct sentence. I have written enough over here. It is not followed by a noun, so it is sure that it is enough is not an adjective over here, and it is before enough adjective is coming. lucky क्या है? एक adjective है और वो positive form में. यहाँ पर luckier नहीं लिखा हुआ, luckiest नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है lucky. ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है. एक और सेंटेंस देखते हैं. शी इज इनफ लकी टू गेट द जॉब. यहाँ पर अब एक चेंज हो गया है. पहले एडजेक्टिव यहाँ आया था, फिर इनफ आया था, लेकिन अब इनफ पहले आया है और एडजेक्टिव बाद में आया है. दिस इज रॉन्ग. ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पर इनफ एक एडवर्ब नहीं है. ओके, सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस एंड दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. आई होप द रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now the next rule is rule of inversion. This is very important. What is rule of inversion? It is applied when a sentence starts with a negative adverb. I told you what are negative adverbs. Negative adverbs are like hardly, scarcely, barely, never, seldom. These are negative adverbs which we have already studied. So whenever a sentence will start from a negative adverb, we will apply this rule of inversion. And according to this rule, the structure of the sentence will be this. First of all, helping verb will come. First of all, negative adverb will come. Negative adverb will come in the beginning. Negative adverb. Negative adverb. Thereafter, helping verb will come. And after that, subject and then the
main verb. So this will be the structure of the sentence. So if you have understood this, that whenever a sentence starts from negative adverb, it will be followed by a helping verb, and then the subject will come, and then the main verb will come. We cannot disturb this sequence. If the sequence gets disturbed, then the sentence is grammatically incorrect. Let's have a look at the sentence. One more thing I want to highlight over here: helping verb will be placed according to the tense of the verb. If it is present tense, we will use the helping verb in present tense, and if it is based on past action, then accordingly we will apply the verb. Example: seldom she visits her village. I have written a negative adverb in the beginning, so we apply this rule when a sentence starts with a negative adverb. तो यहाँ negative adverb से start हो रहा है, तो आगे देखते हैं क्या आना चाहिए. आगे subject आ गया, लेकिन जब भी नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो उसके बाद में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए. लेकिन यहाँ तो एक सब्जेक्ट आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया. तो आप देखिए, पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आई, फिर प्रोनाउन, नाउन. यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. हमें तो बस इस वाले पार्ट पर ध्यान देना है. ये पार्ट गलत है. आगे कोई भी चीज़ आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में ये होना चाहिए. 4 चीज़ें. तो ये गलत हो गया. यहाँ पर क्या मिसिंग है? हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी सेल्डम, दिस इज अ नेगेटिव एडवर्ब, देन डज. डज क्यों आया? क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. सेल्डम डज शी विजिट्स, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मेन वर्ब लगाई हर विलेज. अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया. सो फर्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट, सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट. आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है. दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. दिस स्ट्रक्चर मीन्स रूल ऑफ इन्वर्जन, एंड रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाइज व्हेन sentence starts with a negative adverb. Okay, so this is important. Let's have a look at another example. If I say, hardly does he go to school. Now you only tell whether the sentence is correct or incorrect. देखते हैं. हार्डली, सबसे पहले एक नेगेटिव एडवर्ब आया है, तो अब हमें पता चल गया कि हमें रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना है. तो रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना है तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा. तो नेगेटिव एडवर्ब के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है. यस, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है और टेंस के अकॉर्डिंग ही लगाई है. ठीक है. दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, वी हैव यूज्ड इट करेक्टली. क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में लगाई. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी आ गया. ये तो था हमारा नेगेटिव एडवर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए मेन वर्ब. तो यहाँ पर मेन वर्ब भी आ रही है, गो, मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. सो हमें तो ये वाला पार्ट देखना था. ठीक है. सो दिस पार्ट इज करेक्ट, सो द सेंटेंस इज करेक्ट. ओके. बट इफ आई राइट, अगर मैं सेंटेंस को लिखती हूँ कुछ इस तरह से, hardly he goes to school. If I write the sentence like this, hardly he goes to school, this is a wrong sentence. Why? Because hardly starting में negative adverb आ गया, तो हमें ये structure use करना चाहिए था sentence में, but we have not used a helping verb after negative adverb. We have directly used a subject and then the main verb, so this is incorrect. Hope it is clear to all of you. So the next rule of adverb is the use of no less than and no fewer than. No less than is used with uncountable nouns. What are uncountable nouns? Which cannot be counted. For example, water, knowledge, information, dust. These are uncountable nouns. And when do we use no fewer than? We use them with countable nouns which can be counted, like students, books, pens, chairs. We can count these. Now let's look at the following sentences. There were no less than 100 students in the class. Here I have used there were, a plural verb is used. No less than 100 students. Now students is which noun? It is a countable noun. And I have used no less than with it.
सो इट इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग. हमने क्या बोला है, नो लेस देन तो अनकाउंटेबल के साथ आना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में हमने उसको काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर दिया. सो दिस सेंटेंस स्टैंड्स इनकरेक्ट. व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? देयर वर नो फ्यूअर देन 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज द करेक्ट सेंटेंस. क्योंकि देखिए देयर वर प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और स्टूडेंट्स जो हैं 100 स्टूडेंट्स की जो बात हो रही है काउंटेबल हैं. तो काउंटेबल हैं तो इनके साथ क्या आना चाहिए, नो फ्यूअर देन आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है रूल कहता है नो फ्यूअर देन इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. सो हियर इट इज यूज्ड करेक्टली. देयर वर नो फ्यूअर देन 100 स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन के साथ लगा है इन द क्लास, सो द सेंटेंस स्टैंड्स करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, her knowledge was no less than that of her fellow mates. knowledge की बात हो रही है. knowledge is which noun? knowledge is a countable noun, uncountable noun. knowledge कौन सा noun होता है? uncountable noun होता है. so with uncountable nouns हम कौन सा यूज करेंगे? no less than या no fewer than. countable के साथ हम यूज करते हैं no fewer than. अब यहाँ तो हमने अनकाउंटेबल नाउन यूज करा है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आना चाहिए, नो लेस देन. आगे हमने लिखा है हर नॉलेज वॉज नो लेस देन, तो बिल्कुल सही यूज किया है हमने. और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सिंगुलर वर्ब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हम वर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट का रूल है, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी. Uncountable nouns take singular verb. So remember this thing. So knowledge is uncountable. It is taking singular verb along with no less than. So the sentence is correct. Okay. अच्छा, एक चीज और, जब भी हम no less than या no fewer than यूज करते हैं, these are used for comparison. जरूर किसी ना किसी चीज का कंपैरिजन हो रहा है, या तो किसी काउंटेबल चीज का या अनकाउंटेबल चीज का. ऊपर वाले सेंटेंस में नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, कि भाई इससे कम तो थे ही नहीं, ठीक है. बट यहाँ पर हर नॉलेज वॉज नो लेस देन ऑफ दैट ऑफ अ फेलोमेट्स. यहाँ पर उसकी फेलोमेट्स की जो नॉलेज थी, दैट ऑफ अर फेलोमेट्स का मतलब है उसकी फेलोमेट्स की जो नॉलेज थी, ठीक है, उससे कम नहीं थी उसकी नॉलेज, ठीक है. तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड नो लेस देन. द सेंटेंस इज करेक्ट. लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस. हर नॉलेज वर, पहली मिस्टेक, हमने यहाँ पर वर यूज कर दिया नॉलेज के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लग ही नहीं सकती, तो पहली ग्रामेटिकल एरर ये हो गई है. उसके बाद नो फ्यूअर देन भी हमने यूज कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है. नो फ्यूअर देन हम किसके साथ यूज करते हैं, हम नो फ्यूअर देन यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, लेकिन नॉलेज अनकाउंटेबल है तो ये क्या लेगा, ये नो लेस देन लेगा, तो ये गलत हो गया यहाँ पर. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो आई होप दिस रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नो लेस देन एंड नो फ्यूअर देन. सो द नेक्स्ट रूल इज आफ्टर कॉल और कंसिडर, आफ्टर दीज वर्ड्स we don't use adverb as नहीं लगता call and consider के बाद में. For example, if I say Sachin Tendulkar is called as the god of cricket, generally people make this mistake. हम बोलने में ऐसा बोल देते हैं he is called as, या for example महात्मा गांधी is called as the father of the nation. That is wrong. called के आगे कभी as नहीं लगता. Simply Sachin Tendulkar is called the god of cricket. Similarly, महात्मा गांधी is considered द फादर ऑफ नेशन, एज नहीं लगेगा. आगे देखते हैं, ही इज कंसिडर्ड एज अ नॉलेजेबल मैन. अब यहाँ पर कंसिडर्ड के आगे एज लगा दिया, ये गलत हो गया. द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज कंसिडर्ड अ नॉलेजेबल मैन. सो दिस इज द रूल, डोंट यूज एज आफ्टर दीज टू वर्ड्स, कॉल और कंसिडर. नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 सेज लेट इंडिकेट्स टाइम. लेट और लेटली का क्या मतलब होता है? लेट मीन्स टाइम बताता है वो, कि आज हम लेट हो गए, ठीक है, टाइम बता रहा है. लेकिन अगर हम लेटली बोले, उसमें ly लगा दें, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा एंड इट विल मीन रिसेंटली. रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में किया गया कोई काम, ठीक है, मतलब अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कोई काम हमने किया है, रिसेंटली का मतलब है. सो इट मीन्स नॉट लॉन्ग सिंस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं. सो लेटली मीन्स रिसेंटली. एग्जाम्पल देखते हैं, यू केम लेट टुडे. अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यू केम लेट टुडे मीन्स आज आप देर से पहुँचे, तो ये टाइम बता रहा है.
देर से पहुंचे। क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ यू केम लेटली टुडे? आप आज आए थे हाल ही में, क्या मतलब निकला? कोई मतलब ही नहीं निकला इस सेंटेंस का। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्ड is late over here. I'll give you one more example. Let's say one more example based on the same rule. If I say he has been grouchy lately, he has been grouchy lately. I'm writing it over here. He has been grouchy, Grouchy, lately. So here I have used the word lately. Let's see whether this sentence stands correct or not. अच्छा, grouchy क्या होता है? Grouchy means ill tempered. Grouchy का मतलब होता है ill tempered होना, ठीक है? Grouchy means ill tempered. तो he has been grouchy lately, ठीक है? तो this is a correct sentence. यहाँ पर lately बोलना सही है. अगर मैं बोलूँ he has been grouchy late, तो ये गलत होगा. ओके, वो अभी गुस्से में था, ठीक है, थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो यहाँ पर हम लेटली लिखेंगे, लेट नहीं लिखेंगे. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर कि लेट का मतलब होता है टाइम और लेटली का मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही. नेक्स्ट रूल. नाउ वील सी द यूसेज ऑफ वेरी एंड मच इन अ सेंटेंस. बोथ दीज आर व्हाट? These are adverbs. Let's see how they are used. When we use very, then it will be used with positive degree of adjective. What is positive degree? For example, we say good, better, best. So good is positive degree, better is comparative degree, and best is superlative degree of adjective. Okay, what are adjectives? These are the describing words. So positive degree of adjective जब भी sentence में आएगा हम very use करेंगे, या फिर वेरी यूज होएगा विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं. सो इसके साथ में हमेशा वेरी लगेगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मच, इट इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. what have I written over here? Comparative degree, and over here positive degree. So remember this thing, comparative degree, if it is, then much will be used, and we can also use much with third form of verb. What do we call third form of verb? It is known as past participle. Okay. अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह की होती हैं? फॉर एग्जाम्पल प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड, ठीक है, इंटरेस्टेड, ये होती हैं पास्ट पार्टिसिपल्स. इनको हम डिराइव्ड एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं. डिराइव्ड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. डिराइव करना मतलब पहले से ही प्राप्त हो गए, वो हमें पहले ही मिल चुके. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड क्या है? एक डिराइव्ड एडजेक्टिव है. मीन्स जो चीज़ पहले ही प्राप्त हो चुकी. इफ आई से आई एम प्लीज्ड, आई फील सो प्लीज्ड, ठीक है. प्लीज्ड मतलब डिराइव्ड एडजेक्टिव है एक, आप पहले से ही बहुत अच्छा महसूस कर चुके. डिलाइटेड, ओके, आई वॉज डिलाइटेड टू सी योर परफॉर्मेंस. ओके, डिलाइटेड मतलब मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ था आपकी परफॉर्मेंस देखकर. तो वो चीज़ प्राप्त हो चुकी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिराइव्ड, मिल चुका जो, ठीक है. तो ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? ये एक तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है. डिराइव्ड एडजेक्टिव्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स. दिस इज मच इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, हियर आई हैव यूज्ड इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग इज व्हाट? इंटरेस्टिंग इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इंटरेस्टिंग का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग हो गई पॉजिटिव डिग्री, ओके, इसकी कंपेरेटिव हो गई मोर इंटरेस्टिंग, और इसकी सुपरलेटिव हो गई मोस्ट इंटरेस्टिंग. सो इंटरेस्टिंग अगर पॉजिटिव डिग्री है तो हमने कहा था पॉजिटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी. यहाँ हमने क्या लगा दिया? मच. तो ये गलत हो गया,
ठीक है, तो क्या आना चाहिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक और चीज हमने बोली थी, वी यूज वेरी विद पॉजिटिव डिग्री और वी कैन से V4, दैट इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ देखो ING आ रहा है, तो ये V4 हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज V4। तो यहाँ पर मच नहीं आएगा, क्या आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग आएगा। आई होप द रूल इज क्लियर। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज वेरी बेटर टुडे। आई हैव यूज्ड वेरी ओवर हियर विद बेटर। बेटर कौन सी डिग्री है, आइडेंटिफाई। बेटर एक एडजेक्टिव है, बट बेटर इज नॉट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हुआ पॉजिटिव डिग्री, बेटर हुआ कंपेरेटिव डिग्री, और बेस्ट हुआ सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर बेटर एक कंपेरेटिव डिग्री है तो हमने कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करा था, कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, बट हमने यहाँ पर वेरी यूज कर लिया, सो दिस स्टैंड्स इनकरेक्ट। सो द राइट वर्ड इज मच ओवर हियर, ही इज मच बेटर टुडे। आई होप द रूल इज क्लियर। वी कैन यूज मच विथ these derived adjectives. For example, I say I am much interested in watching that movie. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट मूवी, आई विल से आई एम मच इंटरेस्टेड टू वॉच दैट मूवी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So the next rule is avoid using double negatives in a sentence. Now what do you mean by double negatives? When we use two negative words consecutively. For example, they found hardly no any animal today. यहाँ पर hardly और no एक साथ use हो गए, दोनों ही negative adverbs हैं, दोनों ही negative meaning हमें दे रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है एक के बाद एक लगातार negative words use करने की. One word is sufficient, so we'll say they found hardly any animal today. Hardly के आगे no वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है. We are avoiding double negatives. So this is the rule. So the first sentence is incorrect and the next sentence is correct. First sentence is incorrect and the next sentence is correct. Now the very interesting rule comes based on order of adverbs. Generally we don't think when we speak a sentence. We use any adverb without thinking about the sequence. जो हमारे मन में आता है हम बोल देते हैं. हमारा मन किया बोलने का, I learned the lessons thoroughly today at school. मैंने आज अपने लेसन्स लर्न किए बहुत अच्छे से आज स्कूल में. ठीक है, तो मैंने पहले एडवर्ब ऑफ मैनर बता दिया, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया. कभी कभी हम सोचते नहीं हैं, जो मन में आता है वो पहले बोल देते हैं. मन किया तो बोल दिया आई लर्नड द लेसन्स टुडे एट स्कूल थरली. समटाइम्स मन किया कि भाई मैंने आज लेसन्स याद किए आज, तो पहले टाइम बताया, उसके बाद प्लेस बताई एट स्कूल, उसके बाद मैनर बताया थरली. बट देयर इज अ proper sequence in which you have to use adverbs in a sentence, and that sequence is, first of all, manner will come, adverb of manner, and then you will tell about adverb of place, and then it will be followed by adverb of time. So to remember this, you can remember MPT. This is the short form to keep it in mind. So ये मैंने आपको short form बताई है, इसे बोलते नहीं है, आपको तो ये याद रखना है, लेकिन याद रखने के तरीके हम खुद ही डेवलप करते हैं, तो ये MPT से आपको याद रहेगा. ठीक है, तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, आई लर्नड द लेसन्स थरली. सबसे पहले क्या बताया, मैनर बताया. कैसे याद किए लेसन्स, बहुत अच्छे से याद किए. थरली मीन्स बहुत अच्छे से. देन प्लेस बताई, एट स्कूल. कहाँ याद किए लेसन्स, स्कूल में याद किए. उसके बाद टाइम बताएंगे, कब याद किए, आज याद किए. ठीक है, टुडे. सो थर्ड सेंटेंस इज करेक्ट, आई लर्न द लेसन्स थर्डली एट स्कूल टुडे. फोर्थ सेंटेंस, लेट्स हैव अ लुक. आई लर्न द लेसन्स एट स्कूल, पहले हमने प्लेस बताया, सो दिस इज रॉन्ग. टुडे, फिर टाइम बताया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए, MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम. तो यहाँ पर ये MTP ये गलत हो गया, TPM ये गलत हो गया. क्या सही था, MPT. So this was the rule. I hope it was very interesting for all of you. So now we come on to the last part of the chapter, adverb, which is forms of adverb. Adverb exists in 3 different forms. How? Let's see. First of all, how we make an adjective, how we make an adverb by adding ly to an adjective. See, sudden. What is sudden? Sudden is an adjective.
When we add ly to it, it becomes an adverb suddenly. Okay. Slow is what? It is a describing word. It is adjective. When we add ly to it, it becomes slowly. Okay. Now there is second form of adverb. Some adverbs have same form as adjectives and have similar meanings. कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो बिल्कुल adjectives की तरह ही उनकी स्पेलिंग होती है, उनका मीनिंग भी वही निकल कर आता है, वो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे कि एडजेक्टिव दिखता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फास्ट. अब आप सोचेंगे कि स्लो के आगे हमने एल वाई लगाया तो स्लोली बन गया, तो फास्ट के आगे हमने एल वाई क्यों नहीं लगाया एडवर्ब बनाने के लिए, जबकि फास्ट के आगे हम एल वाई नहीं लगाते. फास्टली इज नो वर्ड. अगर आप बोलते हैं दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है. हम स्लोली बोल सकते हैं लेकिन फास्टली हम नहीं बोलते. किस तरह से बोलेंगे हम? अच्छा, स्लोली और फास्ट दोनों ही एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन फास्ट को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं इफ इट इज फॉलोड बाय अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फास्ट रनर. अब यहाँ पर फास्ट क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये क्वालिटी की तरह यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद में नाउन आ रहा है. ठीक है. सो दिस वर्ड इज नाउन. यहाँ पर रनर जो है वो क्या है? एक नाउन है. तो अगर फास्ट इज फॉलोड बाय अ नाउन तो ये क्या होगा? इट विल बी एन एडजेक्टिव. I've written over here followed by noun. Okay, but यहाँ तो फास्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव, लेकिन हम अगले सेंटेंस में देखते हैं ही रन्स फास्ट. वो तेज दौड़ता है. यहाँ पर हमने एल वाई नहीं लगाया, ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह दिखने वाले भी एडवर्ब्स होते हैं. उसी का एग्जाम्पल है फास्ट. यहाँ पर वो कैसे भागता है, हम यहाँ पर मैनर बता रहे हैं. सो हियर फास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. I will write this is adverb of manner. This is very important. ठीक है. Generally students get confused that fast is adjective or adverb, so this is the difference. Okay. Here it is used as adverb of manner. Now the next category, next form of adverb is adverbs that are not derived from adjective और नॉट इवन डिराइव फ्रॉम एनी अदर वर्ड. ऐसे एडवर्ब्स जो कि ना हमें किसी एडजेक्टिव से मिलते हैं, ना कोई और किसी भी वर्ड से हम उसे डिराइव करते हैं. डिराइव करना मतलब लेना. सो एग्जाम्पल क्या होगा ऐसे वर्ड्स का? एज, इवन, हाउ, नेवर. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये ना तो कोई एडजेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ना ही कोई और वर्ड से लिए गए हैं. ये अपने आप में इनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. सो दीज आर इन थर्ड कैटेगरी ऑफ एडवर्ब्स. सो इनका यूसेज देखते हैं. ही डजंट इवन नो हिज ग्रैंड पेरेंट्स. अब इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, उसका एक एग्जाम्पल है. यहाँ मैंने इवन यूज करा है. वो तो बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं जानता. ठीक है. तो यहाँ पर इवन इज अनदर फॉर्म ऑफ एडवर्ब. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं. नेवर, सो, स्टिल, टू, देन. ओके. एज. सो these were the different forms of adverbs. So here completes your chapter adverb. Now we'll discuss the exercise questions.